the channel The India Reads. Yes guys, today we will study the chapter from class 10th, that is carbon and its compounds. We will study from the NCERT based chapter. It's a very important chapter because the whole chemistry is based upon this chapter. जैसे होता है ना कि इंग्लिश अगर सीखनी है तो एबीसी आनी चाहिए, तो सिमिलरली अगर केमिस्ट्री सीखनी है then we should know about this chapter. This is the ABC of chemistry. So beta, here we will study about the carbon. First of all, the symbol of carbon is C. The symbol of carbon is C, and its atomic number is, the atomic number of carbon is 6. So as it has 6 atomic number, so if we will arrange its electrons, then the electronic configuration that we will get is what? It will be 2, 4. Electronic configuration is 2, 4. That means first shell में हमारे पास आए हैं 2 electrons, and in the second shell we will get 4 electrons. And in 9th standard you have done कि जो second shell होती है हमारे पास उसको valence shell बोलते हैं, and the number of electrons present in the valence shell are known as valence electrons. So this is the main point which is completely based upon this chapter. मतलब कार्बन के पास कितने valence electrons आ गए हैं? 4. So we will draw its electron dot structure. Electron dot structure, which means carbon has 4 electrons in its valence shell. कि कार्बन के पास उसके 4 valence electrons हैं, उसकी outermost shell means उसकी valence shell में, तो उसके पास 4 valence electrons हैं. तो इसी वजह से कार्बन के रिलेटेड इसी 4 electrons की वजह से कार्बन की इतनी ज़्यादा थ्योरी आती है हमारे पास. First of all, we will study about the unique properties of the carbon. Unique properties of the carbon. Due to unique properties only, carbon is capable of forming millions of compounds. कार्बन के बहुत सारे compounds हैं. For example, ग्लूकोज है जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, that is also a compound of carbon. उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, लाइक मीथेन है, ब्यूटेन है, अल्कोहल है, जितने भी अल्कोहल्स हैं हमारे पास वो सारी कार्बन से ही बनी हुई है. तो कार्बन की बेटा 2 यूनिक प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी. टेट्रा वर्ड मींस 4. 4 मींस कार्बन शो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी जो फर्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी मींस कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को नेवर डोनेट इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. नेवर गेन इलेक्ट्रॉन. ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और ना ही ये गेन करेगा. इसका रीजन क्या है कि अगर ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो डोनेट कर देता है तो इसकी वैलेंस शेल में 0 आ जाएंगे एंड इट विल बिकम अनस्टेबल. एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. So that is why carbon always show sharing. It will always show sharing. Sharing means कि अगर हमारे पास कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास मान लो एक हाइड्रोजन आ रहा है चारों तरफ से, लाइक हाइड्रोजन विल कम. हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 1. द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन पड़ा होता है. So the atomic number is 1. So that is why its valence electron is also 1. तो अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स आ जाते हैं with their respective valence electron, then what will happen? They will show the sharing. This is what the sharing means. Carbon will share its 4 electrons with the hydrogen, and hydrogen will share their respective 1 electron with the carbon. मतलब इस चीज को शेयरिंग बोलते हैं. शेयरिंग होने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज मीथेन. इट इज व्हाट? CH4. मीथेन की अगर आगे हम इलैबोरेशन करेंगे, फिलहाल यही है कि टेट्रावेलेंसी में क्या है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन विल interact with, or we can say that carbon will share with 4 electrons. Fine. Now the second unique property is what, which is a very important property, that is what, catenation. Catenation, which is also known as self-linking. Catenation is also known as self-linking. Yes, from the word self-linking, it is judgeable to us कि catenation या self-linking का मतलब है अपने आप के साथ bonds बनाना, मतलब अपने आप के साथ ही लिंक होना. So बेटा सिर्फ एक कार्बन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में, और we can say पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा एलिमेंट है which undergoes self-linking. मतलब कार्बन कार्बन के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, कुछ काउंटिंग ही नहीं है इसके, जितने मर्जी कंपाउंड्स बना लो. सो दिस इज व्हाट कैटिनेशन, दिस इज व्हाट सेल्फ लिंकिंग. मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाई कार्बन इज द ओनली कंपाउंड टू शो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों है जिसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं? सो द आंसर इज ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी. दैट इज व्हाई, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और वी कैन आल्सो से दैट सेल्फ लिंकिंग. मतलब कार्बन की कार्बन के साथ बड़ी चेन्स बनती हैं, कैटिनेशन. दैट इज व्हाई ओनली इट कैन फॉर्म मेनी ऑफ द कंपाउंड्स. ठीक है. आफ्टर दिस, इस टॉपिक के बाद हमारे पास आ जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स मींस कि कार्बन और कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. ठीक है. कार्बन मींस कोल, चाहे कोल कह लो चाहे कार्बन कह लो, एक ही चीज है. जब यही कोल फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर पड़ा रहता है ऐसे ही, तो धीरे धीरे क्या बन जाता है? डायमंड. So the first allotrope of carbon is diamond. Diamond देखने में बहुत चमकता है, lustrous है, ठीक है. लेकिन जो कार्बन है that is not lustrous, but कार्बन ही after millions of years ago डायमंड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो कोयले की खान में ही हीरा पाया जाता है, सुना होगा आप लोगों ने. So that's what, that diamond is always formed in the coal, that is कार्बन की ही फॉर्म है diamond. And the second allotrope is graphite. Graphite is also allotrope of carbon. Graphite होती है बेटा पेंसिल के लेड में, या जो हमारी बैटरीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड होती है. So that is made up of graphite. ठीक है. That is why only it is a good conductor of electricity. Good conductor of electricity. See, carbon is a non-metal. Carbon itself is a नॉन-मेटल, और जो नॉन-मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. लेकिन ये एक्सेप्शन है. ठीक है. ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है दैट नेम अ नॉन-मेटल व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसका आंसर आता है ग्रेफाइट. सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन-मेटल है व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज बकमिनिस्टर फ्यूलरिन. इसकी अभी तक रिसर्चेस चल रही है. बकमिनिस्टर फ्यूलरिन which is also known as C60. C60 इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी जो शेप है इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल. जैसे फुटबॉल में अगर आप काउंट करो तो आपको 60 कॉर्नर्स मिलेंगे along with the many pentagons and hexagons. Pentagons and hexagons. फुटबॉल की जो शेप होती है ना, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो टोटल 60 होते हैं. तो बकमिनिस्टर फ्यूलरिन का जो स्ट्रक्चर है it is also like a football, so that is it's known as C60, means 60 carbon atoms are there. So next we will move on to a very important and a very basic topic, that is IUPAC names of the carbon compounds.
नेम्स और वी कैन से नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे बच्चा जब जन्म लेते हैं तो उसका नामकरण किया जाता है ना, नोमेनक्लेचर। सो वही है कि जितने भी हम कंपाउंड्स बनाएंगे उनको नेम्स कैसे देने हैं, nomenclature of carbon compounds. Just now only we have done that there are millions of compounds of carbon. Carbon के million compounds हैं, तो इतने सारे compounds को name देना that is not possible. So therefore IUPAC जो है उन्होंने मतलब एक हमारे पास criteria बनाया है जिसके थ्रू हम carbon compounds को name दे सकते हैं. So first of all we can say if there is a single carbon, अगर एक ही कार्बन है हमारे पास किसी भी कंपाउंड में, लाइक अभी हमने CH4 बनाया था मीथेन, अगर एक ही कार्बन है सिंगल कंपाउंड में, देन वी विल गिव द नेम मीथ, देन द नेम विल बी मीथ. इफ देयर आर टू कार्बन्स देन इट विल बी ईथ. इफ देयर आर थ्री कार्बन्स लाइक दिस देन इट विल बी prop. Next, if there are four carbons then it will be but. If we have 5 carbons then it will be pent. So these are the names which are given to us. इसके बाद suffix कैसे लगाने हैं वो अभी further करेंगे हम लोग. अगर 6 carbons हैं then hex, 7 है then hept. If there are 8 carbons then it is oct, 9 carbons then it is non. And if we have 10 carbons then it will be dec. Fine. So this is the sequence for the names of the carbon compounds. Next we will move on to family, that is first family which we are going to study, that is alkanes. Alkanes, alkanes का मतलब क्या होता है? alkanes में होती है बेटा सिंगल बॉन्ड, कि अगर हमारे पास कार्बन के अराउंड इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स हैं, एक अगर सिंगल कार्बन है तो, और अगर 2 कार्बन्स है देन ऑल्सो देयर आर सिंगल बॉन्ड्स. एग्जांपल देखो इसकी एल्केन्स की. सिंगल कार्बन इज देयर, ठीक है. ऑलरेडी वी हैव डन दैट देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो 4 हाइड्रोजन्स विल कम, तो इनमें क्या हो जाएगी शेयरिंग. देखो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, शेयरिंग और सिंगल बॉन्ड बन रही है. बेटा इस तरह के फॉर्मूला को जो फैला होता है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर की शेप में बना हुआ है. इसके बाद फर्दर हमारे पास बन रहा है, इसको मिला के इकट्ठा करके, मीन्स इसको कंडेंस करके क्या बन रहा है, CH4. इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला CH4. अब आ जाता है हमारा पॉइंट कि हमने इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसको नेम देना है. सो देयर इज ओनली सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन है तो नेम क्या आ जाएगा, मीथ. मीथ. अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इट मींस दिस वन इज एल्केन, ठीक है. अल्केन है तो इसका सुफिक्स उठा लेते हैं बेटा ANE, ANE, सिर्फ इसी चीज को उठाएंगे और इसका नेम क्या बन गया हमारे पास, मीथेन. सो अगर CH4 है तो उसका नेम क्या होगा, मीथेन. सिंगल कार्बन है मीथ, सिंगल बॉन्ड्स है देन इट इज फ्रॉम एल्केन फैमिली. अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो एन, जैसे हम लोगों में होता है ना, मतलब हम सभी में पर्टिकुलरली जिस फैमिली से हो, अगर हम शर्मा फैमिली से तो शर्मा, अगर हम काटपाल फैमिली से तो काटपाल, गिरधर है, अरोड़ा है ना. तो हर एक बच्चे के पीछे उसका सरनेम लगता है. सो सिमिलरली दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि हर एक फैमिली में हमारे पास जो भी हमने कंपाउंड लिखा है तो उसका हम सरनेम लगा रहे हैं. सरनेम इज व्हाट, सेकंड एग्जांपल. सिमिलरली इफ वी हैव, दैट इज इफ वी हैव 2 कार्बन एटम्स, अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं तो वैसे ही हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने हर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स लगा लिए. ऐसा नहीं है, हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये देखो, ये हमारे पास C1 कार्बन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ. ये हमारे पास C2 कार्बन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक
अब ये जब दोनों कार्बन्स में लिंकेज हो रही है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों कार्बन्स का ही ऑक्युपाई हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों ने ही ऑक्युपाई कर लिया। सो इस केस में क्या होगा, हर एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन्स लगाएंगे हम लोग। देयर विल बी 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है, बिकॉज हर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही हुए। दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है, हर एक कार्बन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब ये क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिमिलरली हम इसका क्या बनाएंगे, कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस क्या बनेगा, पहले कार्बन्स को काउंट करेंगे, C1 C2, दिस विल बी C2। नाउ वी विल काउंट हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 5 and 6। नाउ वी हैव 6 हाइड्रोजन्स। तो कंडेंस फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, C2H6, C2H6। अब आ जाता है वही सेम टॉपिक, नॉमेनक्लेचर, कि इसकी नेमिंग हमने कैसे देनी है। देखो 2 कार्बन्स है तो क्या लगेगा, ईथ। इफ देयर आर 2 कार्बन्स देन इट विल बी ईथ एंड देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड। देखो हर एक कार्बन और हाइड्रोजन में क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से दिस इज फ्रॉम द अल्केन फैमिली, ठीक है, तो क्या लगेगा, ईथेन। दिस इज व्हाट, ईथेन। वन मोर एग्जांपल we'll consider, if we have 4 carbons with us, 1 2 3 and 4, ठीक है, 4 कार्बन्स लेंगे, हर एक कार्बन के पास अपने अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस। तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टीज की जो कैटिनेशन अभी हमने की थी, पहले तो वही फॉलो अप हो जाएगी कि हर एक कार्बन के बीच हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इन कार्बन्स में अब जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, ठीक है, उन पे हमने क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। सो ये सबसे बेस्ट मेथड है कोई भी कंपाउंड बनाने का, कि पहले नंबर ऑफ कार्बन्स लो, फिर हर एक कार्बन के पास उसका 1 1 मतलब उसके 4 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दो। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लगा देंगे, उसके बाद बॉन्ड्स बनाने के बाद हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन्स। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, C कितने हैं, 1 2 3 4, C4, और H कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज व्हाट C4H10। नाउ इट नेम विल बी, अगर 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, ठीक है, दिस इज ब्यूट। सो इसका नेम आ जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड्स है सारी कार्बन में, देन इट विल बी एन, so it is butane। Okay, now we move on to the next family, that is alkenes। Alkenes, in alkenes there are 2 bonds between 2 carbons, so that is why alkenes में सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं होता। जैसे अल्केन्स में फर्स्ट मेंबर था उनका मीथेन, ठीक है, अल्केन्स में फर्स्ट मेंबर मीथेन था, तो अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 कार्बन वाला आएगा, वो फर्स्ट मतलब 1 कार्बन वाला नहीं होगा, बिकॉज अल्कीन्स में हमें कार्बन और कार्बन में क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। सो वी हैव एन एग्जांपल, 2 कार्बन्स आर देयर। अब देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं हमने हर एक कार्बन को, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, ठीक है। अब अल्कीन्स है तो क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में क्या आ गई हमारे पास, डबल बॉन्ड। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वहां क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। सो इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2, दिस इज C2H 1 2 3 4, दिस विल बी C2H4, और नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन्स आर देयर, सो देयरफॉर सेम ईथ, ईथ डबल बॉन्ड है तो ई, ठीक है।
alkynes. Last one is alkynes. In alkynes there are 3 bonds between 2 carbon atoms. ठीक है, ये देखो अल्केन में सिंगल बॉन्ड थी, एल्कीन्स में डबल और अल्काइन में ट्रिपल. सो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 4 कार्बन्स की, 1 2 3 4. ठीक है, अब अल्काइन्स है तो एक ही जगह पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा देना. अगर ट्रिपल बॉन्ड लग गई तो दैट मीन्स ये क्या है, अल्काइन्स. ठीक है, ये नहीं कि हर एक कार्बन के साथ हमने ट्रिपल लगाई, एक जगह पे हमने ट्रिपल लगाई बाकी में सिंगल. अब ये देखो ये वाले कार्बन का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 4, इसका 1 2 3 4, इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गई है. सो अब हमने कोई भी हाइड्रोजन इसको नहीं लगेगी. इसके 1 2 3 4. सिमिलरली ये देखो कंप्लीट हो गए. अब कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, C4H. देखो काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, C4H6. अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो इसका सुफिक्स उठा लिया जाएगा आइन, दैट इज ब्यूटाइन. सो होप आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, मेरी वीडियो पॉज करके देखना, इसको अंडरस्टैंड करना, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. फाइन. सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड द चैनल इज द इंडिया रीड्स. ये जो द इंडिया रीड्स चैनल हम आप लोगों के लिए एज अ एनजीओ लेके आए हैं. तो हम लोगों की यही कोशिश है कि जो बच्चे पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे तो वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से उनको पढ़ें. हमारे पास सिर्फ मैं नहीं और भी बहुत सारे लेक्चरर्स हैं जो आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायो, मतलब ये सभी आपको समझाते रहेंगे. फाइन. सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल.